Let me thank everyone for their words of encouragement. Vice Chancellor Sir, Papuri Ma'am, our coordinator, and Dean Management for arranging this yoga events in a beautiful manner and also encouraging us, motivating us. So let us begin our pranayam and meditation session with Omkara, 3 Omkaras. To take a deep inhalation, Om Sahana Bhavatu Sahanu Bhunaktu Sahaviryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Yogina Chittasya Padina Vacham Malam Shariraschi Yo Vaidyakina Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjali Pranjaliranatoshmi. Om Shanti Shanti Shanti. So today we will be doing some basic exercises, pranayama and meditation. So let us start. These are also called joint opening exercises, which are very important, and we'll do some of them, just gentle ones, so that we are ready for the pranayam and we are ready for the meditation too. Okay, so let us start with the neck joint. So inhale and take your head up. Inhale like that. Exhale. Inhale. Stay there. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. This is very good for your cervical joint. Now we'll do the neck rotation like that, very slowly without any jerk, in a clockwise manner.
problem is not resolved yet, it declares. Like that, rotate opposite sides. Opposite sides like that. Yeah, so now we'll do this rotation like that. Put your hands like that and just will rotate the hands. Like that. Clockwise and anti-clockwise. Opposite. Yeah. Now we'll do for the elbows this exercise. We'll do like that. This one. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay. Now we'll do the ankle extension and flexion. Ankle, sit like that and just extend your legs like that. Extend it like that. Like that. Extend, flex, extend, flex, extend, flex, extend, flex, extend, flex, extend, flex. Now move your legs like that, round and round. Like that. Opposite legs. Like that. Yeah. So this is very good for your. Now this one. It's very good for your knee joints. Yeah.
till the line comes, we'll do the back exercises. So let us come like that. If you put your legs like that, hands like that, and inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, now put your legs like that, look forward, extend it little above, bring it down. So very good for your back problems. Stay there, bring it down like that, look forward, bring it down like that. Stay there. Look forward. Like that. You can give. You want to give? Okay. Like that. Now let us do one thing. This one, lie down on your back. इस तरह, और अपने आप को इस तरह इनहेल करते हुए ऊपर उठाए और एक्सेल करते हुए नीचे लाए. इनहेल करते हुए ऊपर, स्टे देयर, एक्सेल करते हुए नीचे. इनहेल करते हुए ऊपर, स्टे देयर, एक्सेल करते हुए नीचे. ओके, सो दिस इज वेरी गुड फॉर योर बैक. लेग्स को एक्सटेंडेड रखें. दिस इज नोन एज शलभासना. इसको धीरे धीरे पैरों को इस तरह ऊपर उठाए. स्टे देयर फॉर सम टाइम. Bring it down. Opposite legs. Bring it up. Bring it down. Bring it up. Bring it down. Bring it up. Bring it down. Great. Now we'll try to do Kapalbhati Pranayam. तो इसमें क्या करना है? कपालभाति प्राणायाम में in a minute we have to हमें सिर्फ exhalation is active, inhalation is passive. इस
some okay, some audio problem today, so we have to adjust. Yeah. So we'll go for Kapalbhati pranayam. So Kapalbhati प्राणायाम में क्या होता है? एक्सलेशन इज एक्टिव, इनहेलेशन इज पैसिव, बट एक रिदमिक वे में, एक अच्छी तरह धीरे धीरे लयबद्ध वे में इसको किया जाए, और जिनको बैक प्रॉब्लम से, हाइपरटेंशन से, वो इसको ना करें. ओके, तो विल डू दिस कपालभाति प्राणायाम. देखिए, खाली पेट अंदर जाएगा और सांसें बाहर निकल के आएगी. लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगी, बिकॉज इनहेलेशन इज पैसिव, ओनली एक्सलेशन इज एक्टिव. ओके, इन ए मिनट 30 स्ट्रोक जस्ट करके देखते हैं एक बार. सो if you have done 30 times, just sit and relax. Relax करें with eyes closed. This pranayam is very good for abdominal problems, for diabetics, for respiratory congestion, ये सब को रिलीज करने में, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन का बॉडी में इंक्रीज करने में इसका बहुत अच्छा रोल है, और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है. बट धीरे धीरे करना है, लयबद्ध तरीके से करना है. प्राणायाम की यही खासियत, खूबी होती है कि अगर आप सही से करो तो ये सब रोग निवारण करने में ये सक्षम है. अगर गलत ढंग से करो तो सर्व रोग समुद्भवा, मतलब सर्व रोग उत्पन्न हो सकते हैं प्राणायाम के गलत ढंग से करने से. सो वी हैव टू बी केयरफुल इन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. वी शुड नॉट डू इट वेरी फास्ट, वेरी इरिदमिक मैनर. उस तरह हमें नहीं करना चाहिए प्राणायाम को कभी भी. सो लेट अस डू इट अगेन 1 मिनट में 30 स्ट्रोक्स, और धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो. इन द बिगिनिंग कीप इट 30 स्ट्रोक्स. ओके, सो अगेन विल डू इन अ मिनट 30. If you have done 30, sit and relax. Sit and relax.
Just relax. Ma'am, half a minute mute করিব নাকি? আচ্ছা, মোৰ যদি মোবাইলটো দিয়ে মই হেডফোন লগাই লওঁ, কানেক্ট কৰিলে আহি যাব সাউণ্ড। মোৰ তাত এটা ট্ৰাইপডো আছে বেগত। অঁ, ঠিক আছে। We will do now the next pranayam is Bhastrika pranayam. Bhastrika pranayam. So Bhastrika pranayam, inhalation and exhalation is active. Inhalation and exhalation is active. So we need to do that. आपको inhale करना है और exhale करना है. Okay. So let us do. Okay. थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था. We are sorry for the problem. Technical difficulties आ जाते हैं. This is after. Yeah. So we'll now able to do. ध्यान भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट प्राणायाम वी आर गोइंग टू डू भस्त्रिका. भस्त्रिका में बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशंस आर एक्टिव. ओके. सो सांसें लेनी है और छोड़नी है. इन ए मिनट, इन द बिगिनिंग टेक 20 स्ट्रोक्स. ओके. ये देखिए. Once you have done 20, just sit and relax. See the changes in your body. Relax way में प्राणायाम को करें, in a rhythmic manner, in a gentle manner, without forcing, without any jerks. Okay. So एक बार और करते हैं 20 times. भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं हम लोग 20 times. फिर से इन ए मिनट. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेल करें और एक्सहेल करें. जस्ट sit and relax after doing 20 times. So this is भस्त्रिका प्राणायाम. और इन प्राणायाम का काफ़ी अच्छा रोल रहता है हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज़म्स को, ब्रीदिंग मैकेनिज़म्स को इम्प्रूव करने में. हमारे इनफैक्ट बॉडी में बहुत तरह के ब्लॉक्स होते हैं, वो सब खुलने लग जाते हैं. धीरे धीरे इन प्राणायाम के प्रैक्टिस से एनर्जी आती है बॉडी में, एक प्राण शक्ति बढ़ती है आप लोगों की, और आप चुस्त और दुरुस्त रहते हैं. लाइक एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर एक्सटर्नल बॉडी, pranayam improves our internal body. Okay, so Maharshi Patanjali has given us the Ashtanga yoga system, yam niyam asan pranayam pratyahar dharana ध्यान समाधि. तो इसमें सब कुछ मिलके एक हेल्दी स्वस्थ शरीर का निर्माण करने में मदद करते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्राणायाम
we shall be doing is Anulom Vilom Pranayam. We will be doing Anulom Vilom Pranayam. So Anulom Vilom Pranayam को will be हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे और अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह करें. ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, यू कैन यूज़ योर राइट हैंड, आई विल बी यूजिंग माय लेफ्ट हैंड. तो हल्के से इस और धीरे धीरे करना है. ओके, धीरे धीरे सांसों को लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है. नॉट लाइक दैट, इस तरह नहीं करना है. जस्ट इन ए रिदमिक वे टेक इंस्पायर एंड थोड़ा देर होल्ड करें. होल्ड करने के बाद उसको धीरे से छोड़ें. जितने स्पीड से आपने लिया था उससे कम स्पीड में उसे छोड़ने की कोशिश करें. सो लेट अस डू इट. ये देखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए. हाँ, आपको प्राणायाम करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपको नी प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठे, बिस्तर पे बैठे, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं. अगर आप स्वस्थ थे तो नीचे बैठे. आप बहुत तरह के आसन ले सकते हो. अभी देखिए, ये जो है, ये इसको हम लोग सिद्धासन भी कहते हैं. सुखासन में भी आप बैठ सकते हो, एनी कंफर्टेबल आसन, या आप पद्मासन में भी इस तरह बैठ सकते हो. ये देखिए, पद्मासन इज द, बिकॉज ये बैक को स्ट्रेट रखता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर बैक शुड बी स्ट्रेट. बैक शुड बी स्ट्रेट लाइक दैट. ओके, नॉट लाइक दैट. ये देखिए, दिस इज अ हंच बैक, नॉट लाइक दैट. दिस इज अ स्ट्रेट बैक. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए और जहाँ आप प्राणायाम को करें वो जगह क्लीन होनी चाहिए, फ्रेश एयर होना चाहिए. ये सब फैक्टर्स प्राणायाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, एंड विथ ए कूल एंड काम माइंड, नॉट टीवी देखते हुए, आवाज़ करते हुए, साउंड करते हुए, इस तरह के माहौल में प्राणायाम को नहीं कीजिएगा, क्योंकि द ब्रेथ हैज़ ए इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन आवर माइंड. तो जैसी आपकी ब्रेथ वैसे ही आपका माइंड. तो बोथ आर को रिलेटेड. माइंड डिस्टर्ब्ड होगा, ब्रेथ डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्रेथ डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगी. सो दोनों को एक बैलेंस में हमें रखना पड़ेगा. सो लेट अस डू, और इन प्रैक्टिसेस को डेली करें, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू वेरी गुड हेल्थ, वेरी गुड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, वेरी गुड कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस. आपके नर्व्स अच्छे रहेंगे, आपके हर तरह से बॉडी में एक हेल्थ बनी रहेगी. और इसमें इतना ही है. Now, is it audible? Okay. तो हम अब इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे. देखिए मैं कैसे करता हूँ. ये देखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से इनहेल करें, थोड़ा देर होल्ड करें और एक्सहेल करें राइट नॉस्ट्रिल से. थोड़ा सा होल्ड करें, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़ दें, लेफ्ट से ले, थोड़ा सा होल्ड करें अगर कर सकते हैं तो, राइट से छोड़ दें, छोड़ने के बाद होल्ड करें, फिर राइट से ले, होल्ड करें, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ें, लेफ्ट से ले,
hold it few seconds and exhale slowly through the right. राइट से ले, hold it, exhale through the right, left, hold it. Now inhale through the left, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करें, एकाग्रता के साथ इसको करें और राइट से छोड़ दें. राइट से ले, लेफ्ट से छोड़ दे, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़ दे, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़ दे, लेफ्ट से ले, होल्ड इट और राइट से धीरे से छोड़े. Now relax and observe your own mind. Relax completely. Today is the first day, so we will go for now. So हम एक मेडिटेशन है, क्योंकि हमारा मेडिटेशन सेशन है, तो बेसिकली हम अब एक मेडिटेशन करेंगे, सोहम मेडिटेशन. और कल हम और भी प्राणायाम सीखेंगे, जैसे कि इसमें भ्रामरी है, इसमें उज्जाई प्राणायाम है, शीतली है, बहुत सारे प्राणायाम को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे. फ़िलहाल हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, सोहम मेडिटेशन, और आप लोग बिल्कुल एंजॉय करोगे इस मेडिटेशन को. तो आप लोग सभी को हमारे साथ करना है. हम बहुत सारी इस टेक्निक्स सीखेंगे, जैसे ज्योति मेडिटेशन है, सोहम है, महामृत्युंजय रिलैक्सेशन है, देन देर आर टिबेटन बॉल्स. ये सब बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा यहाँ. थर्ड आई मेडिटेशन है, नमस्कार मुद्रा में मेडिटेशन है. तो बहुत सारी चीज़ें इस पूरे हफ्ते में सीखेंगे हम लोग. आज क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, so we apologize for that. Hopefully from tomorrow onwards everything will be all right. तो अब हम एक सोहम मेडिटेशन को करेंगे. अच्छा, सोहम मेडिटेशन को कैसे करते हैं? जस्ट अपने ब्रेथ को देखना है. अंदर जाती हुई श्वास सो, बाहर निकलती हुई श्वास हम. आपको अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, माइन्यूटली अपने ब्रेथ को खाली देखना है. जैसे आप एक स्टेडियम में जाके क्रिकेट मैच देखते हो, वैसे ही अपने ब्रेथ को देखने की कोशिश करनी है. तो आई एम देयर, इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन. और सोहम का मतलब क्या है? सोहम. व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, ही आस्क्स द क्वेश्चन कोहम, हु एम आई? द आंसर इज सोहम. आई एम दैट, आई एम डिवाइन, आई एम गॉड. God resides in my heart, God resides in my very being. In fact, I myself am God. That divinity is there in me. This is the meaning of Soham. तो every inhalation के साथ सो, exhalation के साथ हम. तो आप धीरे से सब लोग अपनी आंखें मीचे, और आप लोग सिद्धासन में बैठ सकते हो. अपनी आंखें मीच के अपने ब्रेथ को धीरे धीरे देखना शुरू करें. अंदर जाती हुई श्वास सो, बाहर निकलती हुई श्वास हम.
अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। जस्ट अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। Keep observing each and every breath through your nostrils. Keep observing each and every breath. अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। धीरे धीरे आपकी ब्रेथ पे फोकस आ रहा है आपका। आप देख पा रहे हो अपने ब्रेथ के फ्लो को। कीप ऑब्जर्विंग। अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। केवल अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। ट्राई टू ऑब्जर्व द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अंदर जाती हुई सांस सो, बाहर निकलती हुई सांस हम। कुछ और मिनटों तक अपने सांसों को देखें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। Now mentally chant the Soham and keep observing your breath. अपने breath को observe करते रहें। Each and every breath flowing through your nostrils into the lungs. Keep observing with eyes closed. Only attention is on the breath. Only focus is on the breath. Now move to your heart. अपने हृदय में देखें। देखें वहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं और ब्यूटीफुल से स्माइल दे रहे हैं आपको। बहुत प्यारी सी मुस्कान भगवान की, और वो स्वयं ब्रेथ कर रहे हैं, आप ब्रेथ नहीं कर रहे हो। इज ब्रीदिंग इन ए रिलैक्स एंड लविंग मैनर। स्वयं आपके हृदय में बैठ के सोहम
ब्रेथ ले रहा है। स्वयं ईश्वर आपके हृदय में बैठ के आज ब्रेथ कर रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ईश्वर मेरे हृदय में बैठ के आज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहा है। सो हम every breath is purifying, every breath is full of love, full of divinity. मैं ब्रेथ नहीं कर रहा, ईश्वर मेरे हृदय में बैठ के ब्रेथ कर रहा है। मैं तो हूँ ही नहीं, केवल ईश्वर है। It is not me, it is He who is sitting in my heart and breathing. Have surrendered my breath to Him. My life is surrendered at His holy feet. And He's sitting in my heart and breathing. Beautiful Soham. Mind is completely relaxing. पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है माइंड। God is Himself sitting in my heart and breathing. I do not exist. It is He who exists. And He who is breathing. Your whole body is merging in the universal consciousness, universal spirit. पूरी बॉडी यूनिवर्स में मर्ज हो गई है and it's a universal breath, the divine breath, Soham, cosmic breath, from the individual to the infinite. Now just open your eyes. Open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोलें। और ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। अब हम 3 ओंकार और असतो माँ करके इस सेशन को क्लोज़ करेंगे आज का। और इसके बाद आप लोग के कुछ सजेशंस है, कुछ क्वेश्चंस है, तो उसको लेने की कोशिश करेंगे। और कल फिर हम इसी तरह आएंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस हफ्ते में। बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक, आपके स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल में बहुत चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग इस वीक में। स्लीप में बहुत सारे चेंजेस आपको महसूस होंगे ड्यूरिंग दिस 1 वीक सेशन। तो एक दिन भी मिस नहीं करना है, पूरे अच्छी तरह अटेंड करना है, तब आपको पूर्ण फ़ायदा इस सेशन का मिलेगा। तो लेट अस डू 3 ओंकार्स।
Again. अस्तु मा सद्गमय तमसु मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सो थैंक यू सो मच। अब अगर आप लोग के कुछ प्रश्न हैं, कुछ डाउट्स है और कुछ सजेशंस है तो हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। फ्यू क्वेश्चंस यू कैन आस्क इफ़ यू विश, और या कोई सजेशंस हो डेफिनेटली टुमारो विल ट्राई टू। आज ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वी अपोलाइज फॉर द प्रॉब्लम, बट होपफुली इट विल नॉट बी टुमारो। और कल और एक बढ़िया सेशन होगा। Do take part because as I said, we'll be learning lot of things during this 1 week. So thank you so much. Now if anybody wants to ask some question, they can ask. Okay, we'll take leave for today. Thank you so much. Have a nice day. We'll meet you tomorrow. Thank you so much.